Hello students, today we are going to study fundamental concept of organic reaction mechanism. So let's start. Organic reaction consists of two parts, one is substrate and other is attacking reagent. So when these two reactants react with each other, there will be formation of products takes place. Sometimes byproducts are also formed by these reactions. The product formation occur by either directly by the formation of transition state or sometimes indirectly by the formation of some reactive intermediate. Our main focus will be on substrate because the substrate is the one which provide the carbon as the reactive site on which the attacking reagent will attack. Sometimes carbon is also present in the attacking reagent, but our main focus will be on the substrate. So we will study all mechanism in the substrate. So what is reaction mechanism? Reaction mechanism is a sequential step-by-step process in which we will observe the movement of electron which is taking place within the molecule and the energetics in which there will be making or breaking of the bonds, and kinetics in which we will study the rate of formation of products. All these conditions are studied under reaction mechanism. So we will first of all start with nucleophile and electrophile. So first is electrophile. Electrophile are electron deficient species. When there is some atom within the molecule which is electron deficient, then it will behave as electrophile. ठीक है, तो electrophiles are of two type. One is positive electrophile and other is negative electrophile. So first is positive electrophile. Example like chloronium ion, bromonium ion, iodium ion, NO2 plus, that is nitronium ion, NO plus, that is nitrosonium ion. These are the some example of positive electrophile. So these are behaving as a electron deficient species. Next is second, neutral electrophile. Example, free radical. This is free radical. ठीक है, alkyl group is having odd electron system, so this will be referred as free radical. Second is Cr2. This is carbene. Next is nitrene. These are electron deficient. Next is SO3, BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, etc. These all are neutral electrophile. It means they are having some atom within the molecule which is electron deficient, so it is behaving as a neutral electrophile. ठीक है, next is second, nucleophile. Nucleophile means nucleus loving. ठीक है, तो nucleus is generally positively charged. So these nucleophile are electron rich, either they having negative charge or some lone pair of electrons, due to which they are attracted towards the positive nucleus. So there are two types of nucleophile. First is negative nucleophile and second is neutral nucleophile. So example of negative nucleophiles are hydrides, chlorides, bromides, iodide, BH4 minus, that is borohydride, AlH4 minus, that is aluminium hydride. Next, carbanions, CH triple bond C minus, it is also a negative nucleophile because the negative charge is coming on carbon. Next is RO minus, next OH minus, next SH minus, next C6H5O minus. So these are behaving as a
nucleophile, negative nucleophile because they are having negative charge on them. ठीक है. Next is neutral molecule. In neutral molecule there should be a lone pair. ठीक है. So lone pair of electrons are present in the neutral nucleophile. Example, first water. In water there is oxygen. Oxygen is having two lone pair of electrons, so it is behaving as a neutral nucleophile. R NH2. ठीक है. Amines, these are also behaving as a nucleophile because nitrogen is having a lone pair of electron. Next is SH, R SH. Sulfur is also having two lone pair of electron. It is R OH. In this case also there is a lone pair of electron in oxygen. This is alcoholic functional group. ठीक है. All these molecules are behaving as a neutral nucleophile because they are electron rich. They are having lone pair of electrons, but there is no charge present on them, so they are neutral nucleophile. जो nucleophile थे उनको हम बोलते हैं Lewis base because they are donating electrons. ठीक है. They are donating electrons, so they are behaving as a Lewis base, whereas electrophiles are behaving as a Lewis acid because they are electron deficient. In the case of electrophile, all the positive species cannot be referred as electrophile because all the positive ions are not deficient in electrons. Example, Na plus, K plus. ठीक है. These are some cations which are not deficient in electrons and some NH4 plus, H3O plus. These are not deficient in electron. Their outermost shell is complete. They are following the octet rule, so they are not electron deficient, so they cannot be regarded as electrophile. They cannot be treated as electrophile. ठीक है. Because they are not electron deficient. So our next topic is fusion of covalent bond. It is of two types. One is homolytic fusion and second is heterolytic fusion. Homolytic fusion is also known as symmetrical fusion. Heterolytic fusion is also known as unsymmetrical fusion. ठीक है. So what is homolytic fusion? So when the covalent bond is broken in such a way that the each atom of the covalent bond takes away the one electron of the shared pair each is called homolytic fusion. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ. ठीक है. In this, these are the two atoms which are joined by the covalent bond. If each atom takes away the one electron of the covalent bond, that is shared pair. ठीक है. shared pair का each electron दोनों atom अगर ले लेते हैं and this is represented by fish arrow which represent one electron displacement. ठीक है. half arrow कहते हैं fish arrow which represent one electron displacement. ठीक है. तो इसकी वजह से there will be the formation of these two species. These are referred as free radical. Free radical are the neutral species which is having odd electron in them, which is formed by the homolytic fusion. ठीक है. So these are referred as free radical. Condition for free radical is high temperature. Second, light, in the presence of light. Next, in the presence of some initiator, that is peroxide. So in these condition free radical can be formed. ठीक है. Next condition is, next type is heterolytic fusion or unsymmetrical fusion. ठीक है. तो next is heterolytic. So what is heterolytic fusion? Covalent bonds are broken in such a way that one of the atom of the covalent bond will take away whole shared pair of electron towards itself. ठीक है. तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा. In this case, this B will take away whole shared pair of electron towards itself, so it is represented by complete arrow which is representing two electrons are transferred to this B. ठीक है. This will form
A प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्पीशीज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज बिहेविंग एज अ कैटायन, whereas another species is behaving as a anion because it is having negative charge. It is taking place because of the electronegative difference between these two atoms, ठीक है। These two atoms having electronegativity difference, it means one atom is more electronegative, so its ability to attract electron towards itself will be more in comparison to A, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो किसकी तरफ हो रहा है, बी की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अनसिमेट्रिकल फ्यूजन, ठीक है। द कंडीशन फॉर दिस is if there is a polar solvent, because these compounds, these bonds are polar, ठीक है। these bonds are polar. Why they are polar? Because of the electronegativity difference. Whenever there is electronegativity difference within the bond, then that bond will be polar, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम polar solvent ले लेते हैं, यानी अगर ये reaction polar solvent में होगी तो heterolytic fusion will increase, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन होमोलिटिक फ्यूजन, इन द केस ऑफ होमोलिटिक फ्यूजन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तभी दोनों की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन को टोटली किसी दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दीज बॉन्ड विच आर प्रेजेंट हेयर आर नॉन पोलर, ठीक है। दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड, इसीलिए इनके ब्रेकिंग के लिए आइदर हाई टेम्परेचर, लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड होमोलिटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस इन दीज बॉन्ड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, विच इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट, inductive effect. So what is inductive effect? When some electron withdrawing group is attached at the end of the hydrocarbon chain, because of the electronegativity of this electron withdrawing group, it will attract, it will displace the sigma electron of the hydrocarbon chain towards itself. Because of that, it will be getting partial negative charge, whereas the first carbon to which it is attached will be getting partial positive charge. As we move away from this electron withdrawing group in the hydrocarbon chain, then we will see there will be decrease in the magnitude of partial positive charge. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ठीक है। इन दिस केस दिस इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन, दिस विल अट्रैक्ट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स itself of this carbon. Why? What is the sigma electron? First of all, the sigma electrons are formed by the complete overlapping of the orbital. So this is sigma electron, this bond is here which is present is sigma bond, ठीक है। तो this will be attracting the whole shared pair of electrons towards itself because of the electronegativity. Because of that, it will be getting partial negative charge, whereas the first carbon will be getting partial positive charge, and this sigma electron is directed toward this chlorine, ठीक है। As we move away from this chlorine, then we will see there will be decrease in magnitude of positive charge. That means the next carbon will be less positive, further मोर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाद में तो इंडक्टिव इफेक्ट टोटली ही क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। इट मीन्स द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन इन ऑल दीज हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू द क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, वन इज, फर्स्ट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, second is positive inductive effect,
ठीक है. So this is the example of negative inductive effect when electron withdrawing group is attached to the end of the hydrocarbon chain, then we will observe negative inductive effect. It means the electrons are attracted towards the negative, that is electron withdrawing group, while moving away from the hydrocarbon chain, so the carbon becoming electron deficient. So this is shown by electron withdrawing group. So the order of or the power of electron withdrawing group is given as NO2. ठीक है. Next is cyanide, fluoro, chloro, bromo, iodo. These are the some electron withdrawing group. Second is positive inductive effect. So when there is a donating molecule is attached to this carbon, this electron deficient carbon, that is first carbon, when there is donating molecule is attached to this carbon, then this carbon will be less electron deficient because those molecule will donate electron to this carbon. तो that is positive inductive effect. तो सबसे ज़्यादा किस में positive inductive effect होता है? In tertiary, बिकॉज टर्शरी हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. इसी को अगर ओपन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दें, CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं और इस कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, ड्यू टू विच द डिफिशियंसी ऑफ दिस कार्बन विल डिक्रीज. ठीक है, दिस कार्बन विल बिकम लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो दे आर कॉजिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंडरी. ठीक है, इन द केस ऑफ सेकेंडरी देयर आर 2 alkyl groups present, so this will be less in comparison to this, यानी less positive inductive effect यहाँ पे शो होगा in comparison to this. Next is this is primary and next is, ठीक है, ये जो ये केस है यहाँ पे आपका कोई भी इसके साथ क्या नहीं है, एल्काइल सिस्टम नहीं है, केवल हाइड्रोजन है. सो दिस विल बी मोस्ट डिफिशिएंट. सबसे ज़्यादा किस में होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर सबसे लीस्ट किस में होगा? मिथाइल में. One of the important point of inductive effect is that it is permanent effect. ठीक है, because there is no involvement of any reagent takes place. This effect is occurring within the molecule by the transfer of sigma electrons. So this is permanent effect. ठीक है, and this effect is generally occur in saturated hydrocarbons. ठीक है. Next is electromeric effect. Next is electromeric effect. Necessary condition for electromeric effect is multiple bond. There should be presence of double bond or triple bond. So when the attacking reagent attacks on one of the atom which is bounded by the double bond, then electron of the double bond is transferred to the next atom, and that atom could be some electronegative atom. This is known as electromeric effect, and this is temporary effect. It means it is occurring when the attacking reagent is attacking. If the attacking reagent is removed, then we will get again the original organic compound. Example, this is carbonyl compound. When attacking reagent attacks, there will be ionization. ठीक है, क्या होगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू वन साइड. ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन is having negative charge whereas carbon is having positive charge. So in this case, this reagent is acting as an initiator. Because of the presence of this reagent, these bond transfer takes place. ठीक है, if the reagent is removed, ठीक है, then again we will get this original compound back. So this is temporary effect which occurs in the presence of reagent. ठीक है, so this is of 2 type. One is positive electromeric effect. Second is negative electromeric effect.
ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. सो व्हेन अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट डबल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टू दैट एटम in which the attacking reagent is present, attacking, so that will be positive electromeric effect because the direction of that pi electron is towards the reagent. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, this is alkene. So when H plus ion, which is a electrophile, electron deficient, attacks on this, ठीक है, तो क्या होगा, this bond will be shifted to the next carbon, ठीक है, ड्यू टू विच दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज वेयर एज दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज. क्या हो जाएगी, ये कंडीशन देखिए कैसे हो रही है यहाँ पे. ठीक है, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज वेयर एज दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज. सो इन द नेगेटिव चार्ज पोजिशन दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक. तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है, and this carbon will get positive charge. So this is positive electromeric effect. Why this is positive electromeric effect? Because the direction of electron, the carbon which is having negative charge, is negative electromeric effect. When the attacking reagent is attacking on the one of the pi bonded atom, while the pi electrons are shifted to the other atom, then the direction of pi electron is away from that attacking reagent. So this is known as negative electromeric effect. Example, this is carbonyl. When cyanide is attacking, cyanide is nucleophile because it is having negative charge. ठीक है, कौन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन विल टेक अट्रैक्ट दिस पाई बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन क्या आ जाएगी, कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज वेयर एज ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दिस साइनाइड आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटायन, दैट इज दिस कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, तो इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन. ठीक है, whereas the nucleophile is attacking on electron deficient side. So this means in this case the pi electron is shifted away from this attacking reagent. So this is known as negative electromeric effect. ठीक है, so what is the difference between inductive effect and electromeric effect? The first difference between the inductive effect and electromeric effect is that inductive effect is taking place in the saturated system. ठीक है, in saturated hydrocarbon. Whereas in electromeric effect it is taking place in doubly or triply bonded atom where is pi electron present. ठीक है, in this there is a transfer of pi electron takes place in which electromeric. In electromeric there is transfer of pi electron takes place, whereas in inductive effect there is a transfer or displacement of sigma electron takes place. थर्ड पॉइंट क्या है कि इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट, whereas inductive effect is permanent effect because in the case of inductive effect there is no attacking reagent isn't required. Our next topic is resonance or mesomerism. It is one of the most important mechanism. It is the reason behind variety of organic reactions, so you have to understand it very clearly. What is the phenomena behind resonance? When the property of particular organic compound or molecule cannot be explained by individual structure, then its properties are explained by forming more than one electronic structure. These electronic structures are known as canonical or Lewis structure. Individual canonical structure cannot explain all the property of that organic compound. It can explain some property but not all the property. The combination of all the electronic structure will explain the complete property of that organic compound, and the combination of this electronic structure is known as resonance hybrid, and the phenomena is known as resonance. ठीक है, तो मैं इसको explain कर देती हूँ. एग्जाम्पल है बेंजीन. जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था वो किससे दिया गया था, केक्यूल स्ट्रक्चर.
There are two types of bonds this benzene ring, ठीक है. One is carbon carbon single bond, it is having 154 picometer length, and carbon carbon double bond having 134 picometer length. But the actual structure of benzene, when observed, it was observed that benzene having carbon carbon length of 139 picometer, which was intermediate between single bond and double bond. ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया, आपको पता है इसी तरीके से बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें जो बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कैक्यूल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दीज बॉन्ड्स आर रोटेटेबल. ठीक है, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड अभी दिख रहे हैं और उस जगह पे नेक्स्ट आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे. ठीक है, तो दीज बॉन्ड्स आर रोटेटेबल और मूवेबल. ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, वो एक्सप्लेन हो रहा था इससे. और ये जो स्ट्रक्चर था ये था रेजोनेंस हाइब्रिड, which is the combination of these two structure first and second. ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर. और आप देख लीजिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्किल है इनसाइड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल और डीलोकलाइज्ड. ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो हर कार्बन, यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं उनके जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड है उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ जा रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जा रहा है. ठीक है, तो जो लेंथ थी दैट वाज नॉट अराउंड सिंगल bond, neither it is totally around the double bond. It means there is some double bond character in whole molecule. ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी बेंजीन रिंग की एक्सप्लेन नहीं करेगा. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म कर रहा है, दिस रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन. ठीक है, तो इंडिविजुअल नहीं एक्सप्लेन करेंगे पर इन सब के कॉम्बिनेशन किसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी को. दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. और ये जो दो स्ट्रक्चर हैं दैट आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है. दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीजन हैविंग द लोन पेयर, सो दिस लोन पेयर विल बी शिफ्टेड टू दिस. ठीक है, देन विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड. ठीक है, देयर इज डबल बॉन्ड, डबल एरो इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा डबल एरो रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और क्या हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो सका है, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड टू दिस. ठीक है, लोन पेयर विल बी शिफ्टेड टू दिस, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस. तो नेक्स्ट विल बी दिस ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इन दिस कार्बन, in this oxygen there will be positive charge and one lone pair. So how many structures are represented by this, 1 2. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर वी आर एबल टू नो दैट देयर इज सम ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी प्रेजेंट था. ठीक है, जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है दैट इज 122 पिकोमीटर. वहीं पे जो ट्रिपल, ये दिस इज डबल बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज 110 पिकोमीटर. ठीक है, और एक्चुअल मॉलिक्यूल में हमको क्या दिख रहा है, लेंथ मिल रही है दैट इज मिल रही है आपको 115 पिकोमीटर, which was intermediate between the double bond and triple bond, and it was explained by the canonical structure. Here are some more examples in which we can see the canonical structure and the hybrid which is formed by the combination of these canonical structure. This is carboxylic acid. ठीक है, this is the lone pair of electron.
ठीक है, दिस लोन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस, ठीक है, बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, देन this will form RCO minus. So the lone pair, in this case how many lone pairs are there? 2 lone pairs. In this case there will be 3 lone pairs because of the presence of negative charge, and the double bond will come on this side and the positive charge will come on this oxygen, ठीक है, and this is one lone pair of this oxygen, ठीक है. So the hybrid will be, so in this case the double bond is present in this position, in this case the double bond is present between this carbon oxygen. It means this double bond is moving between, there will be the partial double bond character between these two oxygen. So the resonance hybrid which will be formed is RCOOH, ठीक है. This is showing partial double bond character. It means the double bond is rotating between these two oxygen, ठीक है, and partial negative charge is coming. So this will be the resonance hybrid, ठीक है. ये हो गया. Next, this is coordinate bond. Coordinate bond is the combination of ionic bond and covalent bond. So which bond will be broken? Ionic bond. So there will be one covalent bond left, ठीक है, and negative charge comes on oxygen and on nitrogen there will be a positive charge, ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, this negative charge will come to this. So if there in oxygen there is negative charge, how many lone pair will be there? 3 lone pair, ठीक है. Then this bond will be shifted towards this oxygen. In this oxygen how many lone pair are there? 2, ठीक है. So what will be the next structure? Canonical structures are represented by double arrow, ठीक है, R N, ठीक. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन, लोन पेयर विल बी 3, देयर विल बी डबल बॉन्ड, ठीक है. सो दीज आर 2 canonical structure, first and second. So what will be the resonance hybrid? It means the double bond is rotating between the 2 oxygen, so there will be the partial double bond character. In resonance hybrid it means the bond length is shorter in comparison to the single bond. तो इसको आप डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. सो देयर विल बी नेगेटिव, and in this case partial positive, in this case partial positive. These are ionic species. How resonance takes place in ionic species? There is negative charge in 2 oxygens, ठीक है. This double bond is attached to this oxygen which is neutral, ठीक है, no negative charge is there. So this negative charge will shift to this, then this will be shifted to this. So what will be the resonance canonical structure? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है. दिस विल बी रिमेन नेगेटिव बिकॉज एज इट इज, हाउ मैनी लोन पेयर विल बी देयर व्हेन नेगेटिव चार्ज कम ऑन ऑक्सीजन? 3 लोन पेयर. डबल बॉन्ड विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है. what will be the next structure? This negative charge will be shifted to this side and this will be to this. The O C double bond, negative, negative, 3 lone pairs, 3 lone pairs and 2 lone pairs. So these are 3 canonical structure, first, second, third. ठीक है. What will be the resonance hybrid? It means the double bond is rotating within these 3 oxygen. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? partial double bond character आ जाएगा. तो resonance hybrid आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है. डैश डैश से पार्शियल डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन्स डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड. partial negative charge on oxygen, partial positive on carbon. ठीक है. So this is resonance hybrid.
topic is rules of writing resonance. What are the condition necessary for resonance? Before starting that, first of all we have to know what is resonance energy or delocalization energy. Resonance energy is the energy difference between one of the canonical, most stable canonical structure and the energy of the resonance hybrid. जो भी मॉलिक्यूल है जिसके हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी और जो एनर्जी हाइब्रिड की होगी, उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो एनर्जी आपको मिलेगी दैट इज डीलोकलाइजेशन एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दिस ग्रेटर विल बी द डीलोकलाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है उतना ही आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज स्टेबल, ठीक है। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी ग्रेटर विल बी द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस hybrid. The benzene ring is having resonance energy of 36 kilojoule per mole. 36 kilojoule per mole, ठीक है। This because of this energy the benzene ring is highly stable. First rule is that there should only be the change in the position of electrons. When electrons are transferred within the molecule, there should only be the change in position of electrons, not in the position of atoms, ठीक है। Second is that the number of electrons in each resonating structure should be same, ठीक है। केवल पोजीशन इलेक्ट्रॉन की चेंज हो सकती है, एटम की पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। सेकंड, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी सेम। थर्ड पॉइंट, इफ सम सेकंड पीरियड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड वी आर शोइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इफ इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल देन द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय दैट कंपाउंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेजोनेंस। Example, yes, as you can see this is nitrogen, this is second period element. If it is not following the octet rule and a structure which will be formed is not considered in resonance. जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, अगर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करें, this bond will be shifted to this side, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, this CH डबल बॉन्ड NH3, ठीक है। सो इन दिस केस दिस नाइट्रोजन इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज वायलेटिंग ऑक्टेट रूल, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, सो इट कैन नॉट हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, सो दिस स्ट्रक्चर विल नॉट कंसीडर्ड इन रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, all the resonating structure, all the canonical structure should have almost same energy. There should not be difference, much more difference in the energy of these canonical structure. Almost same energy of the canonical should be there. So our next topic is relative contribution of resonance structure. So in this example we will see which structure will contribute more towards the resonance hybrid, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, इन दिस एग्जाम्पल द बोथ द स्ट्रक्चर्स आइदर दिस, ठीक है, इन दिस केस बोथ द स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम, दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये जब सेम स्ट्रक्चर हैं तो सेम स्ट्रक्चर का सेम कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी सेम एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस केस, ठीक है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके कैनोनिकल। फर्स्ट देखिए, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, है ना, नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, वेयर एज इन द सेकेंड, इन दिस केस द पॉजिटिव चार्ज इन दिस कार्बन, ठीक है। तो इट मीन्स इट दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस साइड and this bond is shifted to this side, ठीक है। तो this carbon will get negative charge
एंड दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला इधर शिफ्ट करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दूसरा केस है आपका। ठीक है, तो जो आपका न्यूट्रल है, जो मॉलिक्यूल, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका न्यूट्रल है, उसकी एनर्जी आपकी क्या होती है, लेस होती है। तो जब उसकी एनर्जी लेस होगी तो दिस विल कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी लेस है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो दिस विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड मोर टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। वहीं पे जो दूसरे हैं दे आर चार्ज स्पीशीज, देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंस, और आपको पता है चार्ज स्पीशीज आर लेस स्टेबल। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड दे विल कंट्रीब्यूट लेस टूवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इन दिस केस। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल स्पीशीज सो इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर। ठीक है, सेकेंड दिस केस देख लीजिए। In this case there is a difference of positive negative charge, so it will contribute less towards the resonance hybrid. ठीक है, सेकेंड फिर थर्ड केस देख लीजिए। In this case is ethereal फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज इथरल फंक्शनल ग्रुप। इथरल फंक्शनल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है इट इज़ डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, वो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हुआ जा रहा है, तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हुआ जा रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द दिस लोन पेयर देन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज whereas this oxygen will get positive charge। देख लीजिए यहाँ पे this oxygen will get further, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये कार्बन क्या हो गया, नेगेटिव, एंड दिस ऑक्सीजन बिकम पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इन दिस केस क्या हो जाएगा आपका, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अब कहाँ आ जा रहा है, इस कार्बन पे आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, डबल बॉन्ड। देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये जो थर्ड कार्बन था वहाँ पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस है नंबर ऑफ कार्बन का, दैट इज लेस इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, इन दिस केस द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर फार अपार्ट। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं जहाँ ज़्यादा फार अपार्ट होंगे तो दैट स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल। तो ये आपका क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इन दिस केस द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ लेस, यानी यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है दोनों के बीच है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस, तो ये दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो गया। एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी दिस बिकॉज दिस इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज आपका क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन, तो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी दिस बिकॉज दिस इज न्यूट्रल। Second, this structure will be less stable, so this is less stable. ठीक है, this is more stable. ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अगर दूसरा स्ट्रक्चर ये हो जाए कि कार्बन पे नेगेटिव आ जाए और ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, दिस विल बी लीस्ट स्टेबल। Why this is least stable? Because the negative charge is coming on that atom which is less electronegative. This carbon is less electronegative in comparison to oxygen, so it have less tendency to hold negative charge. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है दैट इज़ लेस। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल विल बी न्यूट्रल। देन जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो दैट विल बी मोर स्टेबल। दिस इज डाईकीटोन। ठीक है, डाईकीटोन है तो ये बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन की तरफ, ये वाला बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन की तरफ।
ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड आपके शिफ्ट हो गए, तो नेगेटिव चार्ज देख लीजिए, दिस इज डाई एनायन फॉर्म हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट एटम पे सेम चार्जेस आ रहे हैं, एंड दिस स्टेट इज बहुत ज़्यादा, ये क्या होती है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट एटम पे सेम चार्जेस आ रहे हैं, एंड दिस स्टेट विल बी लीस्ट स्टेबल, यानी ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इस कंडीशन में देखिए, इफ देयर इज कॉन्जुगेशन, ठीक है, देखिए दिस लोन पे, दिस कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन था उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इन दिस केस वेदर द पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पर ये जो स्टेट है दैट इज स्टेबल, यानी जो ये वाली स्टेट होगी ये स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल हो रही है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन ख़त्म कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आपका रिमूव होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड, ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज आपका रिमूव होगा या डिस्पर्स होगा within the molecule by the transfer of lone pair of electron, so that structure will be stable whether the lone pair is coming from the electronegative atom। ठीक, स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स हैं अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं तो दैट स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट। ऑक्टेट रूल को जो फॉलो नहीं करेंगे, यानी मोर देन या तो 8 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की अगर कंडीशन है तो दैट स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट द लीस्ट। इज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द conjugated system to another part of the conjugated system, this is creating low and high density area within the molecule. This is called resonance effect or mesomeric effect. It is of two types. One is negative R effect or negative R effect or negative M effect. Second is negative R effect or negative M effect. Negative R effect or negative M effect, when some electron withdrawing group is attached to the doubly bonded system of aliphatic or aromatic hydrocarbon, or we can also say when the electron withdrawing group is attached to the conjugated system, then we will see negative R effect. Example, ठीक है, in this case this cyanide group, this is behaving as electron withdrawing group, ठीक है, this nitrogen is electron withdrawing, this is electronegative atom, तो ये क्या करेगा, this will attract the electron towards itself, due to which this pi bond will be shifted to this carbon। ठीक है, अब इसी को अगर आप ओपन कर देंगे तो there is triple bond between carbon and nitrogen, due to which this pi bond will be shifted to nitrogen। इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका CH, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, CH2 CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पहले से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, अब यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो ये आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव R इफेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और आपका एसिड, साइनाइड, नाइट्रो, ठीक है, तो ETC ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव R इफेक्ट और पॉजिटिव M इफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इज अटैच्ड एट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देन दिस विल बी शोइंग पॉजिटिव R इफेक्ट और पॉजिटिव M इफेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं आपके, एल्कोहल्स, बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, RSH, thiols, ठीक है, सल्फर इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ईथर्स, ठीक है, इसी तरह से हेलोजन्स लाइक
chloro, bromo, iodo, these are also having lone pair of electrons, so they can be behaving as or showing as positive R effect and behaving as electron donating group. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, CH2 double bond CHCl. In this case chlorine is having lone pair of electron, so it is transferring it lone pair to this. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, CH2 विल हैविंग माइनस चार्ज. ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड Cl. नाउ Cl विल बी हैविंग 2 लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये जो है ये दिस इज शोइंग प्लस R इफेक्ट और प्लस M इफेक्ट. ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट को हम और भी क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एन पाई कॉन्जुगेशन और पाई पाई कॉन्जुगेशन. ठीक है, व्हेन देयर इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये आपका पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा. वन देयर इज सम हेट्रो एटम विच इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अल्टरनेट पोजिशन विद द pi bond, then this will be known as n-pi conjugation. Topic is hyperconjugation. This is also known as Baker-Nathan effect. ठीक है, hyperconjugation is a extension of resonance. So what is the difference between hyperconjugation and resonance? In the case of resonance, there is a conjugation of lone pair of electrons. ठीक है, with पाई बॉन्ड. ठीक है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्जुगेटेड विद पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरह का कॉन्जुगेशन होता है, या तो देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है रेजोनेंस में, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पाई कॉन्जुगेशन होगा. ठीक है, वेयर एज इन द हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्जुगेटेड विद द पाई सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. ठीक है, इसे हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं. वेयर एज इन इंडक्टिव इफेक्ट, in the case of inductive effect there is a displacement of sigma electrons. यानी वहाँ पे जो हम रोल पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम किसका रोल पढ़ रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी takes place in inductive effect. So this is the difference between all these three. ठीक है, in this case there is pi pi conjugation or lone pair pi conjugation. In this case there is role of sigma electrons, while in this case there is sigma electrons which are conjugated to the pi system. तो इसको समझ लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ये कैसे हो रहा है. एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन विच इज फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड विद दिस कार्बन. दीज ऑल हाइड्रोजन्स आर फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड विद दिस कार्बन बाय द एक्चुअल ओवरलैपिंग. सो दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस इज ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज कॉन्जुगेटेड विद द पाई सिस्टम. ठीक है, इफ द पाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द p ऑर्बिटल्स, then the p orbitals which are perpendicular to this axis, these two p orbitals which are perpendicular to this axis and are parallel to each other form pi bond. Both the lobes of this orbital form pi bond. This pi bond is behaving like a electron cloud which will be conjugated with the electron cloud of this hydrogen which is sigma electron cloud. ठीक है, तो इनके बीच में conjugation होना शुरू हो जाएगा and this conjugation will be sigma pi conjugation. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है दैट इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है, in this case as you can see this is the double bond, that is pi bond system. ठीक है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन प्रेजेंट है दैट विल बी नोन एज अल्फा कार्बन.
because this is adjacent to this pi bond system. The hydrogen which are attached to the alpha carbon are known as alpha hydrogen. ठीक है, so when this alpha hydrogen donate its electron to this side, then this pi bond will be shifted to this carbon. So what will be the next structure? In the next structure, hydrogen will be positive, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस विल बी नोन एज प्रोटॉन. ठीक है, इन दिस कंडीशन, इन दिस पोजिशन देयर विल बी पाई बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. स्ट्रक्चर विल बी अब क्या हो जाएगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्रोटॉन बना लेगा, तो यहाँ पे CH2 माइनस. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब ये वाला हाइड्रोजन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा? प्रोटॉन में. CH. ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 minus. So these are the hyperconjugative structure. Next point is this H plus ion in all these conjugative structure seems to be free, but it is actually not free to move. क्यों free नहीं है? Because it is bonded by the पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यानी इसका मतलब ये हो गया, जो सिग्मा पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उससे ये हाइड्रोजन क्या है? बॉन्डेड है. ठीक है, इसीलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसीलिए उसको वहीं पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीक इन कंपेरिजन टू रेजोनेंस, बट इट इज वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. First was directive influence of alkyl groups. ठीक है, यानी जब किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब एल्काइल सिस्टम जुड़ा होता है, तो हमने वहाँ पे ये देखा एरोमेटिक हो सकता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं जहाँ पे एल्काइल सिस्टम जुड़ा हुआ है. तो हमने ये देखा कि दिस एल्काइल ग्रुप इज़ बिहेविंग एज अ डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे, जैसे कि हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, एग्जाम्पल है टॉलुईन. ठीक है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स, ठीक है, इन दिस केस हाइपर कॉन्जुगेशन यानी ये शो कर रहा है दिस एल्काइल ग्रुप इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज स्टिल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस एरोमेटिक सिस्टम. ठीक है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. ठीक है, जबकि इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तब भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. देख लेते हैं कैसे होगा अगर इसके ओपन स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर दें. ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विल बी ट्रांसफर टू दिस साइड, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी टू दिस कार्बन. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी now in this condition there will be double bond. ठीक है, negative charge comes to this carbon, these are two pi bonds. ठीक है, H plus will be shown. ठीक है, यहाँ पे कोई bond represent हम नहीं करेंगे. next step, now this negative charge is shifted to this side, this negative charge to this carbon. तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH double bond. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड, वेयर एज दिस डबल बॉन्ड विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज इन दिस कार्बन. ठीक है, तो ये आपका हो गया. H प्लस विल बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज. नेक्स्ट, इन दिस केस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड. अब दिस बॉन्ड, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड and this bond will be shifted to this carbon as a negative charge. तो negative charge अब यहाँ आ गया, bond आपका यहाँ shift हो गया, एक bond ये था, तो ये हो गया आपका. next देखिए,
this negative charge will be shifted to this side, then this bond will be shifted to this carbon, ठीक है। और यहाँ पे एक H प्लस पहले से था, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे CH कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक H प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेप्स विच आर फॉर्म्ड, दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। कितने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे टोटल बन रहे हैं आपके, 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अभी केवल जब एक हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तब आपके 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। उसमें से आयनिक स्ट्रक्चर्स आपके कितने हैं, आयनिक स्ट्रक्चर्स आपके 3 हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट हाइड्रोजन को वो करेंगे तो दिस विल ऑल्सो शो कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लार्ज नंबर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे। CH3 इज कॉजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, फिर ऑर्थो पोजिशन पे। दिस एक्सप्लेन्स द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। सेकेंड इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो आपका ये वाला जो कार्बन है दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, ठीक। दिस C2C3 बॉन्ड, दिस C2C3 बॉन्ड विच इज अज्यूम टू बी, विच इज अपीयर टू बी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरह दिख रहा है। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड दिख रहा था हमें, उसमें ये जो C2C3 का बॉन्ड दिख रहा था दैट वाज 149 पिकोमीटर, यानी इट वाज शॉर्टर इन कंपैरिजन टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लेंथ दैट इज 154 पिकोमीटर बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ द सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू दिस पोजीशन। क्यों, कैसे शो हो रही है आपकी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से, दिस अल्फा हाइड्रोजन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, there will be a double bond CH2 minus, ठीक है। तो because of this double bond, movement of this double bond, there is some partial double bond character in C2C3 carbon, because of that it is having 149 picometer bond length, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर यहाँ पे कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो भी हमें यही दिख रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इन दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी CH प्लस H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, द बॉन्ड लेंथ वॉज नॉट 154 पिकोमीटर, इट वॉज लेस देन 154 पिकोमीटर, दैट इज 149 पिकोमीटर, विच शोज देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दिस carbon, that is C1C2 carbon. Point was relative stability of alkenes. As we know that greater the number of alpha carbon having alpha hydrogen, greater will be the hyperconjugation and greater will be the number of structures, electronic structures, and greater will be the stability of molecule. जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। If there is one CH3 on each carbon, ठीक है, so this is alpha carbon which is having 3 alpha hydrogen, this is also alpha carbon having 3 alpha hydrogen,
ठीक है, दे विल स्टेबलाइज दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है, इफ वन मोर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड अटैच्ड विद द CH3, ठीक है, तो दिस केस will having more stability in comparison to this case because the number of alkyl group or alpha carbons are increased. Next, if all the hydrogens are replaced by alkyl system having alpha hydrogen, then the stability of this conjugated system will be more because of the increased hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन इधर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज द एल्काइल सिस्टम इज इंक्रीजिंग। अब अगर देख लीजिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज सिस, ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस इज सिस कंडीशन, ठीक है। क्यों सिस कंडीशन है, बिकॉज सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। वहीं पे ट्रांस कंडीशन क्या होती है, CH3C CH3H, ठीक है, सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, तो दिस इज नोन एज ट्रांस कंडीशन। द स्टेबिलिटी ऑफ सिस कंडीशन विल बी लेस इन कंपैरिजन टू ट्रांस कंडीशन। तो अगर इन दोनों में आप चेक करेंगे तो दिस विल बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल ग्रेटर विल बी द एल्काइल सिस्टम अटैच टू द कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज इफ larger the number of alkyl groups attached to carbocation or free radical, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल से अगर आपके लार्जर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो दीज एल्काइल ग्रुप्स आर अल्फा कार्बन विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, सो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन। सो दिस इज 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें होगी, फिर किस में होगी 2 डिग्री और फिर किस में होगी 1 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तब होगी जब ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन है बट इट इज़ नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।